बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to my channel, kids. Today we are going to read a new story from book Kitten Wool. And the name of story is The Horse and His Shadow. Let's start reading. The Horse and His Shadow. घोड़ा और उसका साया. Mr. Malik woke early. Mr. Malik जल्दी जागे. The sun was not up yet. सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था. It was still dark. वहाँ पर अब भी अंधेरा ही था. He opened the door of his room. उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला. It was the only room in his house, apart from a tiny kitchen and a bathroom. उनके बावर्ची खाने और गुसल खाने के अलावा ये उनके घर का वाहिद कमरा था. Mr. Malik's room was his house. Mr. Malik का कमरा ही उनका घर था. He ate in this room and slept in it. वो यहीं खाना खाते और यहीं सो जाते. The night had been warm, too warm. रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा. It will be another hot day, thought Mr. Malik, staring out of the doorway into the darkness. Mr. Malik ने दरवाजे से बाहर अंधेरे की तरफ झांकते हुए कहा, ये एक और गर्म दिन होगा. The night sky was just turning blue. रात का आसमान नीले रंग में तब्दील हो रहा था. I'll be the first person at the market today, said Mr. Malik to himself. Mr. Malik ने अपने आप से कहा, आज मैं बाजार जाने वाला पहला शख्स हूँगा. He yawned and stretched and went inside to wash and change. उन्होंने जमाई और अंगड़ाई ली और अपना लिबास तब्दील करने के लिए गुसलखाने में चले गए. I can hire that big horse, Genghis, from Mr. Jalal, thought Mr. Malik. मिस्टर मलिक ने सोचा, आज मैं मिस्टर जलाल से उनका बड़ा वाला घोड़ा चिंगेज़ किराए पर ले सकता हूँ. He'll get me to Arampur much quicker than the other horses that he hires out. वो मुझे दूसरे घोड़ों के मुकाबले में जल्दी आरामपुर पहुँचा देगा जो वो किराए पर देते हैं. मिस्टर मलिक wiped his forehead with the back of his arm. मिस्टर मलिक ने अपने माथे को अपने बाजू के पिछले हिस्से से पोंछा. Phew, he sighed. उन्होंने आह भरी. उफ. Mr. Malik had work to do in Arampur. Mr. Malik का आरामपुर में एक काम था. He would hire Mr. Jalal's horse, ride there, finish his work and return by nightfall. वो मिस्टर जलाल से घोड़ा किराए पर लेंगे, उस पर सवारी करेंगे, अपना काम ख़त्म करेंगे और रात से पहले वापस आ जाएंगे. Mr. Malik stepped out onto the pavement. Mr. Malik पक्की सड़क पर खड़े हुए. He locked his door and set off for the marketplace. उन्होंने घर को ताला लगाया और बाजार की तरफ चल पड़े. Mr. Malik walked briskly. Mr. Malik तेज़ी से चले. When he arrived at the marketplace, जब वो बाजार पहुँचे, the traders were busy setting up their stalls. ताजिर अपने स्टॉल सेट करने में मसरूफ़ थे. Mr. Jalal would be easy to find. Mr. Jalal को ढूंढना आसान होगा. He always kept his horses at the far end of the square, in the shade of an ancient banyan tree where it was much cooler. वो हमेशा अपने घोड़ों को चौक के आखिरी किनारे पर रखते, एक कदीम बरगद के दरख्त के नीचे जहाँ कदर ठंडक होती. As Mr. Malik drew near, he noticed a queue of people. जैसे ही मिस्टर मलिक नज़दीक पहुँचे, उन्होंने लोगों की एक कतार देखी. Are you waiting to hire a horse? क्या आप घोड़ा किराए पर लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? Mr. Malik asked the last man in the queue. मिस्टर मलिक ने कतार में खड़े आखिरी शख्स से पूछा. We certainly are, replied the man. आदमी ने जवाब दिया, यकीनन हम कर रहे हैं. Mr. Malik grumbled and joined the end of the queue. मिस्टर मलिक बड़बड़ाए और कतार के आखिर में शामिल हो गए. He stood on tiptoe and tried to look above the heads of the people in the queue. वो अपने पंजों पर खड़े हो गए और कतार में खड़े लोगों के सर के ऊपर से देखने की कोशिश करने लगे. He could see the big horse Chinggis tethered to a low branch of the banyan. वो उस बड़े घोड़े चिंगेज़ को देख सकते थे जो बरगद की एक निचली शाख के साथ बंधा हुआ था. I hope no one hires him, thought Mr. Malik. मिस्टर मलिक ने सोचा, मैं उम्मीद करता हूँ इसे कोई किराए पर नहीं लेगा. Those other nags will never get me to Arampur and back on a hot day like today. ये सब नागवार लोग आज जैसे गर्म दिन में मेरी तरह आरामपुर जाकर वापस नहीं आ सकेंगे.
Very slowly the queue got shorter. बहुत आहिस्तगी से कतार छोटी होने लगी. Each customer haggled about the hire charge with Mr. Jalal. हर ख़रीदार मिस्टर जलाल से किराए के पैसों पर बहसो तकरार करता. In time, Mr. Malik was at the head of the queue, and to his surprise, the only horse that had not been hired was Genghis. वक्त रहते ही मिस्टर मलिक कतार के सिरे पर पहुंच गए और वो हैरान थे. चंगेज़ वो वाहिद घोड़ा था जिसको अभी तक किसी ने किराए पर नहीं लिया था. गुड मॉर्निंग मिस्टर जलाल, सेड मिस्टर मलिक. मिस्टर मलिक ने कहा, मिस्टर जलाल सुबह बखैर. आई सी यू हैव वन हॉर्स लेफ्ट एंड ही इज़ वेरी वन आई विश टू हायर. मैं देख सकता हूँ आपके पास एक ही घोड़ा बचा है और ये वही है जिसको किराए पर लेने की मैं ख्वाहिश कर रहा था. गेंगेज़, सेड मिस्टर जलाल. मिस्टर जलाल ने कहा, चंगेज़ ही इज़ नॉट फॉर हायर, आई एम सॉरी टू से. मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि वो किराए के लिए नहीं है. ऑल द अदर हॉर्सेस हैव बीन टेकन ऑलरेडी बट आई डिडंट हायर आउट गेंगेज़. दूसरे तमाम घोड़े पहले ही किराए पर दिए जा चुके हैं लेकिन मैंने चंगेज़ को किराए पर नहीं दिया. आई नीड हिम माई सेल्फ. वो मुझे अपने लिए ज़रूरत है. यू नीड द हॉर्स, आस्क्ड मिस्टर मलिक. मिस्टर मलिक ने पूछा, आपको ये घोड़ा चाहिए? आई डू, रिप्लाइड मिस्टर जलाल. मिस्टर जलाल ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे चाहिए. आई हैव सम वर्क टू डू इन आरामपुर टुडे. मुझे आज आरामपुर में एक काम करना है. यू आर गोइंग टू आरामपुर, आस्क्ड मिस्टर मलिक. मिस्टर मलिक ने पूछा, आप आरामपुर जा रहे हैं? येस, रिप्लाइड मिस्टर जलाल. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट. मिस्टर जलाल ने जवाब दिया, जी हाँ मैंने अभी आपको बताया है. आह, सेड मिस्टर मलिक, सो यू हैव. मिस्टर मलिक ने कहा, आह तो आप जा रहे हैं. परहैप्स आई कैन कम विद यू. क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? गेंगेज़ कैन कैरी बोथ ऑफ अस. चंगेज़ हम दोनों को उठा सकता है. नो नो, सेड मिस्टर जलाल, माई हॉर्सेस आर फॉर हायर मिस्टर मलिक, नॉट फॉर फ्री राइड्स. मिस्टर जलाल ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर मलिक, मेरे घोड़े किराए पर देने के लिए हैं, ना कि मुफ्त की सवारी के लिए. देन लेट मी हायर हिम, सेड मिस्टर मलिक. मिस्टर मलिक ने कहा, तो फिर आप इसे मुझे किराए पर लेने दें. आई डोंट माइंड इफ़ यू कम विद मी. मैं बुरा नहीं मनाऊंगा अगर आप मेरे साथ आएँ तो. मिस्टर जलाल स्क्रैच्ड हिज हेड. मिस्टर जलाल ने अपना सर खुजाया. ऑल राइट, ही सेड एट लास्ट. आखिर में उन्होंने कहा, ठीक है. यू हायर द हॉर्स एंड आई विल टेक अ राइड विद यू. तुम घोड़ा किराए पर लो और मैं तुम्हारे साथ सवारी करूँगा. मिस्टर जलाल एंड मिस्टर मलिक हैगल अबाउट द हायर चार्ज. मिस्टर मलिक और मिस्टर जलाल ने किराए के पैसों पर बहस की. मिस्टर मलिक डिड नॉट वांट टू पे द होल अमाउंट. मिस्टर मलिक पूरी रकम अदा नहीं करना चाहते थे. बिकॉज मिस्टर जलाल वुड बी राइडिंग विद हिम, क्योंकि मिस्टर जलाल भी उनके साथ सवारी कर रहे होंगे. बट मिस्टर जलाल वांटेड टू गेट एज मच मनी एज ही कुड फॉर द हॉर्स. लेकिन मिस्टर जलाल घोड़े के लिए इतनी रकम हासिल करना चाहते थे जितनी वो कर सकते थे. एट लास्ट द टू मैन सेटल्ड ऑन अ सम. आखिरकार दोनों बंदे एक रकम पर मुत्तफिक हो गए. मिस्टर मलिक अनटाइड द हॉर्स एंड लेड हिम टू द रोड. मिस्टर मलिक ने घोड़े को खोला और सड़क की तरफ लेकर चल पड़े. मिस्टर जलाल पैक्ड अवे हिज थिंग्स बिफोर जॉइनिंग मिस्टर मलिक एंड गेंगेज ऑन द रोड. मिस्टर जलाल ने सड़क पर मिस्टर मलिक और चंगेज़ के साथ शामिल होने से पहले अपनी चीज़ें बांध ली. मिस्टर मलिक माउंटेड द हॉर्स. मिस्टर जलाल माउंटेड इट टू. मिस्टर मलिक घोड़े पर चढ़ गए और मिस्टर जलाल भी. एंड द टू मैन सेट ऑफ. और दोनों आदमियों ने सफ़र शुरू किया. द जर्नी टू आरामपुर वॉज अनकम्फर्टेबल. आरामपुर का सफ़र बहुत तकलीफ दे था. इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे. ये एक बहुत गर्म दिन था. द रोड वॉज फुल ऑफ होल्स. सड़क पर बहुत से गड्ढे बने हुए थे. एंड एवरी टाइम गेंगेज स्टम्बल्ड. और हर दफ़ा जब चंगेज़ ठोकर खाता, द टू मैन बम्प्ड इनटू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते. देयर वर नो ट्रीज बिसाइड द रोड अंडर विच टू रेस्ट. सड़क के साथ दरख्त नहीं थे जहाँ आराम किया जाता. बाय द टाइम दे अराइव्ड इन आरामपुर द मैन वर हॉट, टायर्ड एंड ग्रम्पी. जब वो आरामपुर पहुँचे तो गुस्से में थे, थके हुए थे और चिड़चिड़े हो चुके थे. द हॉर्स वॉज ग्रम्पी टू. घोड़ा भी चिड़चिड़ा हो चुका था. ही वॉज नॉट यूज्ड टू कैरिंग टू मैन. उसे दो लोगों को उठाने की आदत ना थी. मिस्टर मलिक एंड मिस्टर जलाल अरेंज्ड टू मीट आफ्टर लंच व्हेन देयर वर्क वुड बी ओवर. मिस्टर मलिक और मिस्टर जलाल ने ये तय किया कि वो दिन के खाने के बाद मिलेंगे जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा. दे वुड देन ट्रैवल होम टुगेदर.
तब वो इकट्ठे घर की तरफ सफ़र करेंगे। It was much hotter in the afternoon than it had been in the morning. दोपहर के वक्त गर्मी सुबह के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर मलिक sat and waited for मिस्टर जलाल। मिस्टर मलिक बैठ गए और मिस्टर जलाल का इंतज़ार करने लगे। At last मिस्टर जलाल appeared carrying a large sack. आखिरकार मिस्टर जलाल नमूदार हुए और उनके पास एक बहुत बड़ी बोरी थी। मिस्टर मलिक was not pleased to see मिस्टर जलाल और his sack. मिस्टर मलिक मिस्टर जलाल या उनकी बोरी को देखकर खुश नहीं हुए। The horse did not look pleased either. घोड़ा भी खुश नहीं नज़र आ रहा था। मिस्टर मलिक mounted the horse. मिस्टर मलिक घोड़े पर चढ़ गए। मिस्टर जलाल lifted the sack onto the back of the horse and with some difficulty mounted the horse too. मिस्टर जलाल ने बोरी घोड़े की कमर पर लाद दी और कुछ मुश्किल के साथ खुद भी घोड़े पर सवार हो गए। With an even heavier weight now on his back, Chingiz went off very slowly. अपनी कमर पर बहुत भारी बोझ के साथ चंगेज़ आहिस्ता चल रहा था। It was too hot to trot. भागने के लिए अभी बहुत गर्मी थी। Though Mr. Malik tried his best to make the horse go faster. अगरचे मिस्टर मलिक ने अपनी भरपूर कोशिश की कि वह घोड़े को तेज़ चला सकें। After traveling for about an hour in the blazing sunlight, Chingiz stopped. सूरज की चमकती हुई धूप में तकरीबन 1 घंटा सफ़र करने के बाद चिंगेज़ रुक गया। The poor horse was panting and wheezing. बेचारा घोड़ा हाँप रहा था और लड़खड़ा रहा था। मिस्टर मलिक एंड मिस्टर जलाल dismounted. मिस्टर मलिक और मिस्टर जलाल नीचे उतर आए। We shall have to give the horse a bit of rest, said Mr. Malik. मिस्टर मलिक ने कहा हमें घोड़े को थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। Quite right, replied मिस्टर जलाल. मिस्टर जलाल ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक। I don't want my horse to get too tired. मैं नहीं चाहता कि मेरा घोड़ा बहुत ज़्यादा थक जाए। मिस्टर जलाल left the sack on the horse. मिस्टर जलाल ने बोरी घोड़े की कमर पर ही छोड़ दी। It would be too much trouble to lift it off and then put it back again later. ये बहुत मुश्किल है कि अभी हम इसको उतारें और बाद में फिर इसको दोबारा से ऊपर चढ़ाएं। Poor Chingiz stood there in the sunshine and looked angrily at the two men. बेचारा चंगेज़ धूप में खड़ा था और दोनों आदमियों को बहुत गुस्से से देख रहा था। Mr. Malik sat down on the ground in the shadow of the horse. मिस्टर मलिक ज़मीन पर घोड़े के साए में बैठ गए। The sun was high in the sky and the shadow of the horse was not very large. सूरज आसमान में ऊंचा था और घोड़े का साया इतना बड़ा नहीं था। मिस्टर जलाल tried to sit in the shadow too. मिस्टर जलाल ने भी साए में बैठने की कोशिश की। So he moved very close to Mr. Malik. बस वो मिस्टर मलिक के बहुत करीब होकर बैठ गए। Don't sit too close, shouted Mr. Malik angrily. मिस्टर मलिक गुस्से में चिल्लाए इतना करीब मत बैठो। It's too hot and you want to make me hotter by sitting on top of me. यहाँ पहले ही बहुत गर्मी है तो मेरे ऊपर बैठकर मुझे और ज़्यादा गर्मी पहुँचाना चाहते हो। You are sitting in the only shade for miles around, said Mr. जलाल. मिस्टर जलाल ने कहा इर्द गिर्द मीलों तक एक ही साया है जिस पे तुम बैठे हो। I want to sit in the shadow too. मैं भी साए में बैठना चाहता हूँ। There's only room for one here, said Mr. Malik. मिस्टर मलिक ने कहा यहाँ सिर्फ एक के लिए जगह है। And since I hired the horse for the day, the shadow too is mine. और घोड़ा क्योंकि दिन के लिए किराए पर मैंने लिया है तो साया भी मेरा है। What rubbish! exclaimed Mr. Jalal. Chingiz belongs to me, so I have every right to sit in his shadow. मिस्टर जलाल ने वजाहत पेश की ये क्या फजूल बात है, चिंगेज़ मेरा है और इसके साए में बैठने का पूरा हक रखता हूँ मैं। But I hired the horse, said Mr. Malik. मिस्टर मलिक ने कहा लेकिन घोड़ा किराए पर मैंने लिया है। And I own the horse, cried Mr. जलाल. मिस्टर जलाल चिल्लाए मैं घोड़े का मालिक हूँ। You didn't hire the shadow. तुमने साया किराए पर नहीं लिया। Don't be stupid, cried Mr. Malik. मिस्टर मलिक चिल्लाए बेवकूफ़ मत बनो। Move away, दूर हो जाओ। You are making me too hot. तुम्हारी वजह से मुझे बहुत गर्मी आ रही है। Don't call me stupid, shouted Mr. Jalal, pushing Mr. Malik out of the shadow. मिस्टर जलाल मिस्टर मलिक को साए से बाहर धकेलते हुए चिल्लाए मुझे बेवकूफ़ मत पुकारो। Then Mr. Malik pushed Mr. जलाल. फिर मिस्टर मलिक ने मिस्टर जलाल को धक्का दिया। मिस्टर जलाल pushed Mr. Malik.
اور مسٹر جلال نے مسٹر ملک کو دھکا دیا. مسٹر ملک pushed مسٹر جلال again. مسٹر ملک نے مسٹر جلال کو دوبارہ سے دھکا دیا. This time with more force. اس دفعہ زیادہ طاقت کے ساتھ. مسٹر جلال grabbed hold of مسٹر ملک شرٹ. مسٹر جلال نے مسٹر ملک کو ان کی قمیض سے پکڑ لیا. And soon the two men were locked together, rolling in a cloud of dust on the road. جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور دھول کے بادل میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. They had come to blows. اور وہ جھگڑے تک پہنچ گئے. The two men fought and fought. وہ دونوں آدمی لڑتے رہے اور جھگڑتے رہے. They cursed and shouted at each other. وہ ایک دوسرے پر چلائے اور لعنت ملامت کی. Their shirts were torn. ان کی قمیضیں پھٹ چکی تھی. Their clothes were covered in dust. ان کے کپڑے مٹی سے ڈھک چکے تھے. And then they stopped fighting and sat in the road panting. پھر انہوں نے لڑنا بند کر دیا اور سڑک پر ہانپتے ہوئے بیٹھ گئے. They were quite exhausted but not too tired to hear the sound clip clop coming from the stony road. وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ ٹک 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 کی آواز نہ سنتے جو قریب کی پتھریلی سڑک سے آ رہی تھی. Cengiz was trotting away. چنگیز بھاگ کر جا رہا تھا. He had quite enough. اس کے ساتھ کافی ہو چکا تھا. While the silly men had been fighting, the horse trotted off. جب بے وقوف آدمی لڑ رہے تھے تو گھوڑا بھاگ گیا. In quarreling about the shadow, they lost the thing that made the shadow, the horse. سائے کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے انہوں نے وہ چیز کھو دی جو سایہ بنا رہی تھی یعنی گھوڑا. So kids, it was the end of story. If you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.